meeting. So whenever a quick decision is required to be taken, it is very difficult for a company to take quick decision, because in case of meeting of the shareholder, the company has to call the annual general meeting of the company, and it takes time. So there is delay in decision making in case of a कंपनी को जब भी कोई डिसीजन लेना है तो वो जरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग हमेशा इसमें पहले भी मैं बोल चुका कि हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं विद सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस. सोल ट्रेडिंग में यू कैन इजीली टेक डिसीजन बिकॉज दैट सोल ट्रेडिंग बिजनेस इज ऑन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन. But in case of a company, the decision will be taken by the board of directors or the shareholders of the company at its general meeting. So first of all, we have to call the general meeting. Then in that general meeting, we have to take decision. So it is a decision making process is a lengthy process in case of a company. Now, next point is neglect of minority interest. Neglect of minority interest. That is the fourth point. Neglect of minority interest. Here minority means the persons having lesser number of shares. The person having lesser number of shares is called minority in case of a company. So neglect of minority interest, because whenever the annual general meeting will take place to select the board of directors, the persons having more number of shares will get the directors chosen of their choice. जिनके पास शेयर्स ज्यादा होंगे, जिनके पास शेयर ज्यादा होंगे उनके पास वोटिंग राइट ज्यादा होगा, तो जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो वो थ्रू वोट वहां पे डिसीजन लिया जाएगा. तो जिनके पास जितना शेयर है उनको उतना ज्यादा उनको वोटिंग पावर मिला हुआ है. तो जब भी एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा, तो वहां पे क्या होगा कि जिनके पास ज्यादा शेयर है, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं, दे विल सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ देयर चॉइस. सो यहाँ पे माइनॉरिटी जो है उनका जो भी इंटरेस्ट है वो उनका वो फुलफिल नहीं होगा. वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिलेक्ट करके नहीं भेज सकते हैं. तो ये है नेग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. हियर माइनॉरिटी मींस द पर्संस हैविंग लेसर नंबर ऑफ शेयर्स. जिनके पास कम नंबर ऑफ शेयर्स है उनको हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी बोल रहे हैं. तो नेग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. तो हम लोग यहाँ पे पहले में जब व्हेनेवर वी डिस्कस्ड अबाउट the company is maintained or run by the board of directors chosen by the shareholders of the company. shareholders जो board of directors choose करते हैं वो कंपनी को रन करते हैं. तो concentration of economic power, that means all the powers related with the working of the company are in few hands, that is in the hands of the board of directors. तो board of directors जो है इस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे, इस तरह का पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे जिसमें वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट का ज्यादा ख्याल रखेंगे. तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर मींस द पावर टू रन द कंपनी आर इन फ्यू हैंड्स, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रन द कंपनी. सो द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. Next one is, sixth point is lack of personal interest. The lack of personal interest. So in case of sole trading and partnership business, we have already seen that sole trader and partners are self motivated. वो लोग खुद से मोटिवेटेड थे कि मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूंगा. लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, इफ द कंपनी हैज अपॉइंटेड different experts to perform different types of activities. For example, for performing the finance function, they have appointed chartered accountant or accountant. For performing marketing function, they have appointed MBA marketing personnel. For functions, they have appointed HR managers. So lack of personal interest, it means that कि जो भी इस तरह के इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट किया गया है तो वो सिर्फ सोचेंगे कि मैं अपने एक जॉब में जा रहा हूं, मैं इसीलिए लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इज देयर.
Nobody will give his or her or nobody will try to give his or her 100% effort. So there is lack of personal interest. Various restrictions that the company can produce this thing, licensing will be required, etc., etc. So there are more government restrictions in case of a company. But in all these company at the time of starting the business, वो कैपिटल रेज कर लेते हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी एंड आफ्टर रेजिंग द कैपिटल वो बोलते हैं कि वो कंपनी बंद हो गया, कंपनी कोई फंक्शन नहीं करेगा, कंपनी बंद हो गई. इट माइट बी पॉसिबल कि वो पैसा लेके अपना चले जाएंगे. ठीक है, दीज आर फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट, दीज मे बी पॉसिबल. So these were the various limitations of a company. So we have already completed company. Company, what is company? You are company free to ask. Otherwise, we will move to the next topic: cooperative form of organization. A cooperative organization. Anybody having problem in company? Anybody? In any point, advantage, merits, limitations, types of companies. Anybody having any problem in this? Or otherwise we should move forward. Hello? Anybody having any problem in company topic? Anybody having any problem in company topic? Or we should move forward. Next topic. Sir. We should move forward, na? We should discuss next topic. Now, next topic is cooperative form of organization. Cooperative form of organization. So we have already discussed sole trading or sole proprietorship, partnership, company. We have already discussed. Now the next topic is cooperative form of organization. Cooperative form of organization, in simple words, we can define this cooperative form of organization is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. इसको हम लोग पहले एक आसानी से इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. सो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनरली जो है पुअर और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है एक ग्रुप बनाते हैं. पहले इसको हम लोग ऐसी कहानी जैसे समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग इसका फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट, वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव जो एस्टैब्लिश होता है उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे. होता क्या है कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली एस्टैब्लिश्ड और फॉर्म्ड बाय
पुअर एंड इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो आपस में मिलते हैं। और इसके लिए रूल है कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ सोसाइटी आपको एस्टेब्लिश करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10%, 10 जो है इंडिविजुअल जो है मिलेंगे, जो कि जनरली जो है इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से आ रहे हैं या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो 10 इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10, उससे कम में आपका ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको बनाने के लिए कम से कम 10 इंडिविजुअल चाहिए। फिर आगे रूल बोल रहा है कि जो 10 इंडिविजुअल आप बनाएंगे दैट मस्ट बी एबव द एज ऑफ 18 या उससे ज्यादा का वो होना चाहिए, माइनर वो नहीं होना चाहिए, 18 से बिलो का नहीं होना चाहिए। ठीक, और जो आपका ये एसोसिएशन फॉर्म होगा दैट मस्ट बी वॉलंटरी, इसे कि नहीं किसी को आप मतलब कोएर्सन से अनड्यू इन्फ्लुएंस करके किसी को धमकी करके वो ग्रुप बनाए, वो नहीं हो सकता है। वो आदमी खुद से आएंगे, चलो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, इससे जो है अपने जो मेंबर्स है उसका बेनिफिट के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा we have discussed various forms of business organization that was sole trading partnership and company। तो उन सारे forms of business organization का मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उनका उद्देश्य था कि हम लोग ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। लेकिन इससे कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उससे वो डिफर कर रहा है। इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका आपने फॉर्मेशन किया है टू सर्व द मेंबर्स, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, खुद की मदद करना और अपने जो ग्रुप है उनकी मदद करना। तो ये आपका वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव है, इनका प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो क्या हो गया ये क्या हो गया, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स। अपना मेंबर्स का वेलफेयर के लिए, मेंबर्स का आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने ये सोसाइटी बनाया है। तो आपका रूल भी पता चल गया, मिनिमम 10 मेंबर्स होना चाहिए, मैक्सिमम का देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। लेकिन अभी ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है ये, लेकिन अभी बहुत सारा उसमें चेंजेज आया है। आपके बुक यदि किन्हीं के पास होगा तो वो जरा पुराना बुक है मुझे लग रहा है, मैं इसमें जो जो चेंजेस होगा मैं आपको उसमें नोट करा दूंगा। तो आपके बुक में जैसे दिया हुआ है कि देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबरशिप, बट इन केस ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द मैक्सिमम लिमिट इज 100। ठीक है, तो ये हो गया कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने का। तो आपको करना क्या पड़ा, यू हैव टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 10 और मोर मेंबर्स। आपको जिस स्टेट में है वहां के कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो यहाँ पे जो स्टेट में है वहां पे जाके आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सोसाइटीज रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन दैट स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मिनिमम आपको पता होगा, मिनिमम 10 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड। और जो ये 10 मेंबर्स होंगे दैट मस्ट बी अ मेजर पर्सन। मेजर पर्सन मीन्स अबव द एज ऑफ और मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज वो होंगे। अब इनका काम क्या होता है, उसका काम के बारे में हल्का हम लोग जान ले, उसका फिर इसका डिटेल में वन बाय वन करेंगे। काम क्या होता है, जैसे बोलेगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव। अब वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज पर योर चॉइस आप अपना वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इनका क्या फंक्शन होगा, ये आपने क्यों कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने एस्टेब्लिश किया। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने एस्टेब्लिश किया कि आपका जो डे टू डे वॉकिंग्स में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे आपको चीजें लगती है, बहुत सारा गुड्स आपका यूज का है। ठीक है, जैसे चावल दाल आपका राशन हो, ठीक है, वेजिटेबल्स हो, ये सब आपका बहुत सारा आपका गुड्स जो आपका डेली यूज का है। ठीक है, मिल्क है, बटर है, ब्रेड है, सोप्स है, ये। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे क्या, दे विल या दैट सोसाइटी विल परचेज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। वो जो कंपनी है डायरेक्टली वहां से वो परचेज करेंगे। तो बीच का जो भी है, जैसे हम लोग पास जो गुड्स आता है, यदि हम लोग कोई रिटेल शॉप से खरीदते हैं तो वो एक चेन बन के आता है, वो एक आपका वो पूरा मूवमेंट के साथ आता है कि पहले वो मैन्युफैक्चरर बनाया, मैन्युफैक्चरर से वो होलसेलर खरीदा, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास आया, रिटेलर से फिर आपके पास कंज्यूमर के पास आया। तो ये जो है सब अपना अपना प्रॉफिट ऐड करते रहते हैं, तो आपके पास पहुंच के वो सामान आपके पास महंगा हो जाता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज करते क्या है, वो सीधा प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करते हैं, वहीं से डायरेक्ट गुड्स वो लोग ले लेते हैं। तो वहीं से डायरेक्ट गुड्स लिए, अब मान लीजिए उसमें एमआरपी 100 रुपीज, हम लोग यानी कोई रिटेल शॉप से खरीदते हैं तो हम लोग को 100 रुपीज उसका पेमेंट
करना होता है, यदि आप बल्क में खरीदे, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदे, तो प्रोड्यूसर जो है वो आपको जो उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसमें कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको डायरेक्टली दे सकता है। तो जिसका एमआरपी लिखा है 100 रुपीज, इट माइट बी पॉसिबल दैट वो आपको 70-80 रुपीज में वहां से मिल जाए। तो अब मान लीजिए मुझे 70 रुपीज में मिला, तो इसी तरह यदि सारे गुड्स मुझे एमआरपी से कम में मिल रहा, तो मैं अपने जो भी मेरा जो सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं गुड्स 70 रुपीज में लाया और उसमें मान लीजिए कि 5 रुपया भी मैं उसमें ऐड कर दिया तो 75 रुपीज, तो 100 रुपीज का चीज आपको 75 रुपीज में आपको वहां पे अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपना जो भी मेंबर्स है उसको सर्व करना। किस तरह सर्व करना? बाय प्रोवाइडिंग देम चीपर गुड्स। तो चीपर गुड्स किस ढंग से आया आपके पास? क्योंकि आपने डायरेक्टली उसे प्रोड्यूसर से उसे परचेज किया। तो इसी तरह बहुत ढंग से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है। जैसे कोई बोलेगा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब मान लीजिए फिर जब भी हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें तो वहाँ हमेशा 10 और मोर मेंबर्स होंगे। तो वो जो ग्रुप है, वो जो सोसाइटी है, और जनरली जो आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका काम क्या है कि वो जो भी अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, वहां पे कुछ प्लॉट ऑफ लैंड खरीदेंगे। तो प्लॉट ऑफ लैंड खरीदेंगे और अपने इट माइट बी पॉसिबल दैट उसको प्लॉट करके अपने मेंबर्स में बांट लेंगे। इट माइट बी पॉसिबल दैट वहाँ बिल्डिंग खड़ा करके अपने मेंबर्स को वो सेल कर देंगे एट अ चीपर रेट। तो ये सब सारा फंक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक, तो इसका हम लोग बेसिक देखें, तो बेसिक देखें तो हम लोग इसमें हल्का इसमें डिफरेंस भी किया गया कि इन केस ऑफ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप कंपनी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, बट हियर इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी the main objective of this cooperative society is to serve the members, is to serve their members, अपने members को serve करना, अपने member को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उनका एस्टेब्लिशमेंट किस ढंग से होगा वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक, इसका वन बाय वन इसका यदि किसी को यदि डिफिनेशन करना हो तो वो सेक्शन 4 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में दिया हुआ है। इसका डिफिनेशन, अ सोसाइटी which has its objective the promotion of economic interest of its members, a society which has its objective the promotion of economic interest of its members in accordance with कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो हम लोग इसमें बेसिक यदि हम लोग देखें, इनका कभी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। खुद की मदद करो और आपके जो ग्रुप हैं उनकी मदद करो, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। ना वन बाय वन इसके हम लोग फीचर्स और इसका मेरिट डिमेरिट और इसका वेरियस टाइप्स करेंगे तो ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी किया जाए। नाउ फीचर्स, फर्स्ट फीचर इज वॉलंटरी एसोसिएशन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, the first feature of cooperative form of a cooperative society is voluntary association. That means anybody can join this cooperative society as a member. कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। इसको हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ हम लोग मतलब anybody who has attained the age of 18 can become a member of this cooperative society। जिनका भी 18 या उनसे ज्यादा साल हो चुका है वो इसके मेंबर बन सकते हैं। इसमें लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक, कोई इसमें कोएर्सन, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को धमकी के द्वारा, कोएर्सन मींस यहाँ पे धमकी बोला जाता है, किसी को कोएर्सन नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कुछ नहीं करके अब उसे उसको मेंबर बना सकते हैं। एनीबडी कैन बिकम द मेंबर ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। वॉलंटरी, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुझे बनना ही पड़ेगा, आपको ये बनना ही पड़ेगा इसका मेंबर, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। सभी वॉलंटरी, वो खुद से आएंगे कि मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ, या आप किसी के सामने प्रपोजल रखेंगे तो वो खुद से बोलेंगे कि ठीक है मैं इसका मेंबर बन जाता हूँ। ठीक, आपको सिर्फ ये ध्यान देखना है, ये ध्यान देना है कि वो 18 या उससे ज्यादा का एज का होना चाहिए।
So this was the first point, voluntary association. That means any person can become a member of this cooperative society. कोई भी व्यक्ति जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड वन इज ऑटोनॉमी एंड स्टेबिलिटी. ऑटोनॉमी एंड स्टेबिलिटी. तो ऑटोनॉमी मीन्स हम लोग पहले भी किए हैं, सेपरेट एंटिटी. सेपरेट एंटिटी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, इसका मेंबर्स अलग है, दोनों अलग अलग, दोनों का एग्जिस्टेंस है. नो नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी. तो हम लोग कंपनी में भी देखे कि कंपनी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है. क्यों? क्योंकि हम लोग एक पॉइंट था उसमें परपेचुअल सक्सेशन. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गोज ऑन फेवर, बट द कंपनी विल गोज ऑन फॉर एवर. तो ये हम लोग उसमें उसका एक फ्रेज था कंपनी के केस में. इस केस में भी वही है, स्टेबिलिटी इज देयर. मेंबर्स चेंज होते रहेंगे, मेंबर्स ज्वाइन करते रहेंगे, मेंबर्स छोड़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एज यूजुअल चलते रहेगा, चलते रहेगा. सो देयर इज स्टेबिलिटी देयर इन केस ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज स्टेबिलिटी. दैट मीन्स मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट दिस सोसाइटी विल गोज ऑन फॉरएवर. चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा. आदमी आते जाएंगे, निकलते जाएंगे, कुछ भी से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. So this was the second point. First point was voluntary association. Second point is autonomy and stability. Next one is democratic management. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. तो हम लोग हमेशा फिर इसको कंपेयर करेंगे कंपनी के केस में. तो कंपनी के केस में हम लोगों ने देखा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वहां पे प्रॉब्लम आ रहा था कि जो भी जिनके पास जितना शेयर है उनके पास उतना वोटिंग राइट है. फॉर एग्जांपल मैं कंपनी के केस में एक सिंपल से एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ये भी क्लियर होगा कि कंपनी के केस में सपोज कंपनी ने 100 शेयर इशू किया और मिस्टर ए है, ही हैज परचेज 90 शेयर्स. Mr. A had purchased 90 shares and remaining Mr. B, C, D, E, F and the remaining 10 shares were distributed among the other 10 persons. One shares each. So, Mr. A who has got 90% of the shares has the voting right of 90%. उनका वोटिंग राइट हो गया 90%. अब है कभी वहां पे कंपनी के कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा तो जो मिस्टर ए बोलेंगे वही होगा. क्योंकि बोलेंगे ठीक है वोटिंग कराते हैं, वोटिंग करते हैं तो वोटिंग राइट मिलता है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स यू होल्ड. आपके पास कितना शेयर्स है उसके बेसिस पे आपको वोटिंग राइट दी जाती है. तो मेरे पास यदि 90% शेयर्स है, मेरे पास 90% वोटिंग राइट है, तो कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो मैं जो बोलूंगा वही होगा, मिस्टर ए जो बोलेंगे वही होगा. कि किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो मिस्टर ए जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट 90% है. बाकी सारे मिल के भी कुछ नहीं कर सकते हैं. तो ये हो गया इनके सब कंपनी. अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज a provision of democratic management. How? That means one person is equivalent to one vote. Suppose there are 10 members, क्योंकि आपको पहले बोला गया है कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए. तो मान लीजिए कि हम लोग यही मान के चले कि मिनिमम है, मिनिमम 10 मेंबर्स आर देयर. सपोज 10 मेंबर्स है तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होगा? हर एक मेंबर को एक एक वोटिंग राइट मिला हुआ, हर एक मेंबर एक एक वोट दे सकता है. तो कुछ भी डिसीजन लेना है तो आपके पास कितना का आपका वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कितना % आप शेयर रखे उससे कोई मतलब नहीं है. दैट इज इमटेरियल, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. वन मेंबर विल बी इक्विवेलेंट टू वन वोट. तो कुछ भी डिसीजन लेना है यदि वोटिंग कराया जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितना है उससे कोई मतलब नहीं है. जितना मेंबर्स है सभी को एक एक वोट का अधिकार है, सभी को एक एक वोट दे सकते हैं. सभी का वन मेंबर इज इक्विवेलेंट टू वन वोट. तो कुछ भी डिसीजन लेना है तो यदि मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं तो जो ही 6 मेंबर जो बोलेंगे वो हो जाएगा. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. लेकिन हम लोग कंपनी के केस में देखें वहां पे वोटिंग राइट था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स यू होल्ड. तो वहां से हल्का यहाँ पे डिफरेंस है. यह डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, वन मेंबर वन वोट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस वाज द थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल. नाउ
तो कैपिटल पूंजी कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा? बोल रहा है द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना शेयर कैपिटल, मेन उनका जो सोर्स ऑफ कैपिटल है वो शेयर कैपिटल है, जो कि आपका मेंबर्स वो कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये जो है इट इज ए लिमिटेड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये बहुत लिमिटेड सोर्स है। इनका मेन सोर्स है कहां से आएगा? मेन सोर्स इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट आर द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर दिस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपना मेंबर से तो कैपिटल लेती ही इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, बट द मेन सोर्स इज फ्रॉम लोन और ग्रांट्स एंड सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनका मेन उनका सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। सो in India all the cooperative societies are registered under the Cooperative Societies Act. So all the cooperative society has to follow all the rules and regulation as laid down in the Cooperative Societies Act. तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में जो भी रूल्स जो भी रेगुलेशंस दिए हुए हैं, आपको सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट पॉइंट इज, सिक्स्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव। अब है हम लोग स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि इनका जो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन एम है टू सर्व इट मेंबर्स, टू सर्व इट मेंबर्स, दैट इज सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल हेल्प, खुद की मदद, सभी की मदद, पूरे ग्रुप की मदद, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए इनका बोला जा रहा है सर्विस मोटिव। द मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू serve its members. This is the point. Next one is limited return on capital. Limited return on capital. So whatever the capital that is being contributed by the members of cooperative societies के जो members जो contribute किए हैं, उन पे जो है उनको जो रिटर्न मिलेगा, आपके बुक में ये 9% दिया हुआ है, उसको आप लोग चेंज कर लेंगे, दैट इज एट प्रेजेंट 10%। बहुत सारे बुक में 10% दिया हुआ है, आपके बुक ये जरा पुराना बुक है जिसमें 9% दिया हुआ है। तो द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स, आपके बुक में दिया हुआ है द रेट ऑफ डिविडेंड टू बी, द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू 9% एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। आप इसे चेंज करके 10% कर लेंगे, क्योंकि बाकी ऑथर बुक्स में दिया हुआ है 10%, अब उसको चेंज कर लेंगे, ये जरा ओल्ड प्रोविजन है आपका। ठीक है, तो लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल, तो लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल क्या हुआ कि वो फिक्स है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। कि आपने जितना कैपिटल लगाया, मान लीजिए सपोज मैंने 1 लाख रुपीज कैपिटल लगाया, उसका यदि 10% करे तो मुझे 10,000 मिलेगा, तो दैट इज लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल। आपका इट माइट बी पॉसिबल दैट आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बहुत ज्यादा अर्न किया, उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा वो है 10% ऑन योर शेयर कैपिटल। आपको 10% डिविडेंड के रूप में मिलेगा। डिविडेंड, तो डिविडेंड पता नहीं बहुत प्रॉब्लम आता है कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड को यदि मैं हल्का उसका वर्ड यदि मैं हिंदी में बोलूंगा तो आपको ज्यादा वो कंसेप्ट उसका क्लियर होगा डिविडेंड से रिलेटेड। डिविडेंड को हिंदी में बोला जाता है लाभांश, लाभ का अंश। तो फिर यदि इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डिविडेंड, तो डिविडेंड मींस अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा गया, उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो हिंदी में इसे बोलते हैं लाभांश, मींस लाभ का अंश, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया तो आपका डिविडेंड मिलेगा ओनली 10%। ओके, सो देयर इज लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल। आपका कैपिटल पे लिमिटेड रिटर्न है, मतलब आपका मैक्सिमम जो है 10% मिलेगा, उससे ज्यादा आपको डिविडेंड नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट of feature of cooperative society is distribution of surplus. distribution of surplus, तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म
and a company, the profit are distributed among the partners or shareholders in proportion of the capital contributed by them. फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि कंपनी की बात करूं कि कंपनी जो है किस तरह वो अपना सरप्लस मीन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। सपोज कंपनी जो है का प्रॉफिट हुआ, सारे एक्सपेंडिचर सारा टैक्स पेमेंट करने के बाद 2 लाख रुपया उसका प्रॉफिट हुआ, और अब सिर्फ शेयर होल्डर को देना बचा हुआ है, तो 2 लाख रुपया उसका प्रॉफिट हुआ, और नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू किया था, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने बेचा था, तो पर शेयर और 2 लाख रुपीज प्रॉफिट जो है, और वो उसको 1 लाख शेयर इशू किया था, तो हम यहाँ पे लोग डिविडेंड का कैलकुलेशन करेंगे कि प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड और सब्सक्राइब्ड। अब है, मान लीजिए कि 1 लाख शेयर उसने इशू किया था और 2 लाख रुपया प्रॉफिट है, तो पर शेयर मिलेगा 2 रुपया करके, पर शेयर डिविडेंड विल बी ₹2, and this dividend amount will vary from members to members. किस तरह, सपोज आई हैव परचेज 10 शेयर्स, तो आई विल गेट 10 into ₹2, that is 20 rupees. Mr. X has purchased 100 shares, so Mr. X will receive 100 into 2, that is 200 rupees. So हम लोगों ने ये देखा कि पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी के केस में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसके बेसिस पे। बट इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लिमिटेड डिविडेंड, या लिमिटेड डिविडेंड मीन्स आपका बुक में जो 9% है, मैं जो अभी 10% बोल रहा था कि जो जितना कैपिटल लगाया है उस पर उसको 10% मिलेगा। ठीक है, जो उसका प्रॉफिट का 10% एज ए डिविडेंड दिया जाएगा। अब है कि आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब तो फिक्स हो गया कि प्रॉफिट का जो है 10% डिविडेंड देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट, सपोज 10% देने के बाद कुछ बच गया, मैं कंपनी ने, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 1 लाख रुपीज आपका अर्न किया, तो 10% डिविडेंड दिया, 10,000 एज ए डिविडेंड पेमेंट हो गया, अब बाकी 90,000 बचा, इसका क्या, इसको किस तरह पेमेंट होगा, तो दैट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस, जिसको हम लोग बोलेंगे कि दैट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस, उसे बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो ये बोनस का फिर कैलकुलेशन किस ढंग से होगा, तो बोनस हेयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस मेड। आपने क्या काम किया वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, उसके बेसिस पे आपको वो बोनस दी जाएगी। तो आपने क्या काम किया, मीन सपोज मेरा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप लोगों ने देखा कि हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद लेते हैं एट ए चीपर रेट, ठीक, उसको अपने मेंबर्स में सप्लाई करते हैं, मेंबर्स में उसे बेचते हैं। अब है, सपोज मिस्टर एक्स जो सबसे ज्यादा उसने वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से गुड्स खरीदा, ठीक, तो मिस्टर एक्स को बोनस सबसे ज्यादा पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे है कि जो बोनस जो है उनका शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में ना देके, उनको किस तरह से उन्होंने बिजनेस किया है उसके बेसिस पे वो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द मेंबर्स। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ठीक, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। दैट मीन्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ द लिमिटेड, जो आपका डिविडेंड था दैट इज 9 और 10%, वो पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज बोनस। तो बोनस किस बेसिस पे देंगे, आपने जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, उससे आपने कितना बिजनेस किया है, उसके बेसिस पे जो सबसे ज्यादा वो बिजनेस किया होगा, जो सबसे ज्यादा वहां से खरीदा होगा उसको सबसे ज्यादा बोनस मिलेगा, जो सबसे कम किया होगा उसको सबसे कम बोनस दिया जाएगा। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। बोलिए, एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? उसको हम लोग जल्दी सब कंप्लीट किया जाए। कोई पॉइंट में किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है? कोई पॉइंट में किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है? एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट? हेलो,
If anybody having any problem in any point, or we should move forward, or we should move forward. Next topic. Now next one is classification of cooperatives. Now cooperatives were started in different fields to promote the well-being of different sections of the society. That means various types of cooperatives were being established. Varieties of cooperatives were being established. Now one by one, first one is consumer cooperatives. The consumer cooperatives, as we have already discussed, it is for the people who want to obtain their day-to-day household goods at reasonable price from consumer cooperative societies. मीन्स क्या हो गया कि वैसे पीपल जो कि चाहते हैं कि अपना डे टू डे आपका जो हाउस होल्ड गुड्स है वो रिजनेबल प्राइस पे मिले उनको, तो वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश करते हैं. तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज टू कि वो जो है गुड्स जो आपको चीपर रेट पे मिले, गुड्स जो आपको रिजनेबल प्राइस पे मिले. क्योंकि हम लोग पहले भी इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपका इन केस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी द गुड्स विल बी परचेज्ड बाय दिस सोसाइटी डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर. वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदेंगे और जो उनके पीछे जो मिडिल मैन है दैट इज होलसेलर रिटेलर, वो वहां समाप्त हो जाएंगे और डायरेक्टली आपको वो गुड्स प्रोवाइड किया जाएगा. तो इससे क्या होगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो कम दामों में मिलेगा, तो वो अपना आपको चीप प्राइस पे वो आपको सप्लाई कर सकता है. दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स. Now, next one is producers cooperatives. अब है these types of cooperatives are formed by small industrial producers and artisans. ये जो small industrial producers हैं और artisans हैं, वो इसे ये सोसाइटी फॉर्म करते हैं. इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि कुछ बनाएंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उनको मशीन जो है अवेलेबल कराएं, उनको रॉ मटेरियल्स सप्लाई करवाएं और उनका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उनको वो मार्केट कराएं. दैट मीन्स दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, सप्लाई रॉ मटेरियल्स, मार्केट द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेंबर्स. तो ये उनका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स का मेन फंक्शन है. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स. तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, तो ये जो है कुछ प्रोड्यूसर्स आपस में मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं. उनका काम क्या है कि हम लोग सारा प्रोडक्शन करेंगे और हम लोग सारा मिल के उसे बेचेंगे, कि वहां पे जो डायरेक्टली हम लोग कंज्यूमर को बेचेंगे. बीच में जो मिडिल मैन है उसको हम लोग, ये मिडिल मैन जो हम लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे हम लोग बच पाएंगे. तो ये है मार्केटिंग कोऑपरेटिव. इसमें क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में मिलेंगे और बोलेंगे कि हम लोग जो प्रोड्यूस करेंगे हम लोग सारा आपस में मिलके एक साथ हम लोग एक जगह से हम लोग उसे सेल करेंगे, एक जगह से हम लोग उसको मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे. तो इसको होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स. नेक्स्ट वन इज हाउसिंग कोऑपरेटिव्स. तो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स के बारे में बोला जा रहा है कि दीज सोसाइटीज मेनली ऑपरेट इन अर्बन एरियाज. ये हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का मेन फंक्शन है कि दे विल परचेज प्लॉट ऑफ लैंड्स इन अर्बन एरियाज. वो प्लॉट ऑफ लैंड्स जो अर्बन एरियाज में खरीदेंगे, ठीक, और अपने मेंबर्स को या तो प्लॉट ऑफ लैंड प्रोवाइड करेंगे या वहां पे बिल्डिंग बना के, वहां पे हाउस बना के अपने मेंबर्स में वो एट ए चीपर रेट उसे प्रोवाइड करेंगे. ये हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का ये काम है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव्स. ना क्रेडिट जो है, तो क्रेडिट सोसाइटीज आर स्टार्टेड बाय पर्संस हु आर इन नीड ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट सोसाइटी जो है वो, या क्रेडिट सोसाइटी जो है वो इसे इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं जिनको क्रेडिट की आवश्यकता होती है. तो ये क्या होता है, अपने मेंबर्स को
एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये फंक्शन है कि वो क्या करेंगे, जिनको भी क्रेडिट की जरूरत है, जिनको भी लोन की जरूरत है, वो अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज फार्मिंग कोऑपरेटिव्स। तो फार्मिंग कोऑपरेटिव्स में ये है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन? तो it is very difficult for small farmers or the farmers having a small land for cultivation purpose। अब मान लीजिए बहुत सारे फार्मर्स है जिनके पास हम छोटे छोटे जमीन है, वहां वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करेंगे, फार्मिंग कोऑपरेटिव कि बहुत सारे फार्मर्स आपस में मिल जाएंगे कि चलो हम लोग साथ में मिलकर हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और हम लोग साथ में बेचेंगे। तो इस तरह से फॉर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन वेरियस स्मॉल फार्मर्स कम टुगेदर, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स साथ में आएंगे और साथ में कल्टीवेट करके साथ में वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये है फार्मिंग कोऑपरेटिव्स का मेन फंक्शन। तो these were the various classification of cooperative society। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो हम लोगों ने देखा कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड फार्मिंग कोऑपरेटिव्स। किन्हीं को कुछ इसमें यदि है डाउट तो पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब सिर्फ इसमें 2 पॉइंट बचा हुआ है, मेरिट एंड लिमिटेशंस, वो करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे। दैट टॉपिक विल बी द लास्ट टॉपिक। Anybody having any problem in these topics? Anybody having any problem in these points? Okay. Now, next one is merits of cooperative society। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हम लोग जल्दी जल्दी करें। फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन। तब हम लोग स्टार्ट में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्वाइट इजियर इन कंपैरिजन विद द कंपनी से यदि कंपेयर करें तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्वाइट इजियर, ये ज्यादा आसान है। क्योंकि एनी 10 adult persons can voluntarily form themselves into an association and get it registered with the registrar of cooperatives। कोई 10 जो इंडिविजुअल मिलके ये आपका वॉलंटरली मिलेंगे, एसोसिएशन फॉर्म करेंगे और अपना जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स में जाके करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत आसान है, कोई 10 आदमी मिलके अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। कंडीशन है एबव द एज ऑफ 18 होना चाहिए। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी। तो जस्ट लाइक कंपनी, इनका भी लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड। कितना लिमिटेड? टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। जितना मुझे का शेयर लिया उतना ही मुझे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मुझे मेरा लायबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ भी पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज सोशल सर्विस। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू, या उसका हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग बार बार देख भी रहे थे, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। Here cooperative societies are not formed with the objective of earning more and more profit। cooperative society को फॉर्म नहीं किया गया ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए, अपने मेंबर्स को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट है स्टेट असिस्टेंस। अब है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ नंबर ऑफ ग्रांट्स, लोन्स एंड financial assistance are offered by the government to these societies to make them function effectively। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सही ढंग से चले, इफेक्टिव ढंग से चले, इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट जो हैं आपका, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, बहुत सारे
बहुत केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको फिनांस करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप में एनीबडी कैन बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कोई भी बन सकता है, ठीक। उसमें सिर्फ आपको देखना है ही मस्ट बी और सी मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18, वो 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये ओपन मेंबरशिप है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एट अ चीपर रेट। अभी हम लोग जस्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में हम लोगों ने देखा वो जो गुड्स जो है डायरेक्टली परचेज करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। अब बीच के जो मिडिल मैन है होलसेलर रिटेलर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो यहाँ पे इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कस्टमर्स को या अपने मेंबर्स को गुड्स जो है चीपर रेट पे अवेलेबल करा पाते हैं। तो ये हो गया सप्लाई गुड्स एट अ चीपर रेट। तो these were the various merits of this cooperative society. नेक्स्ट है लिमिटेशंस। अब है ये 3-4 हम लिमिटेशन देख लें। तो लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट, तो इसमें तो बोला गया इसमें कोई भी मेंबर बन सकता है। तो जनरली हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्टिंग किए थे तो स्टार्टिंग में बोला गया था कि जनरली दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर स्टार्टेड बाय पुअर एंड इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो उन लोग को बिजनेसमैन जैसा उनका वो मतलब चालाकी नहीं होगा कि कहाँ प्रॉफिट कमाए, कहाँ इसका इन्वेस्ट करे, कहाँ करे, उतना वो नहीं कर पाते। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व इट्स मेंबर। तो बिजनेसमैन जैसा वो ज्यादा प्रॉफिट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट करे तो ज्यादा मिलेगा, वो उतना बहुत ज्यादा ये अपना ब्रेन यूज नहीं कर पाते हैं। बिजनेसमैन जैसा चालाकी से अपना जो भी कैपिटल है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो दैट इज लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट। Next one is absence of mutual interest. तो एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट स्टार्टिंग तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है फॉर सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो उसमें इन्फ्लुएंशियल मेंबर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना पर्सनल गेन के लिए यूज करना शुरू करता है। तो इसीलिए बाकी मेंबर्स का कुछ नहीं हो पाता है। जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स है वो सिर्फ अपना पर्सनल गेन का वहां पे ख्याल रखते हैं। तो ये वहां पे प्रॉब्लम है, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट मींस बोल रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इनएक्टिव हो जाता है और इसका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स लाइफलेस। स्टार्टिंग तो लगता है ये कर लूंगा वो कर लूंगा इससे होगा उससे होगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सभी को बोलते चलो चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, और फिर है इनसफिशिएंट मोटिवेशन। इसमें बोला गया कि आप कुछ भी हो आपको डिविडेंड रेट है वो तो फिक्स है 10%। तो कितना भी काम करेंगे मुझे 10% ही मिलेगा, जो कि आपका लिमिट किया हुआ है। इसीलिए इनसफिशिएंट मोटिवेशन इज देयर। सिंस द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज लो द मेंबर डू नॉट फील इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। वो देख रहे हैं कि इसमें रिटर्न बहुत लो है, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सेक्रेसी। इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग में हम लोगों ने देखा कि देयर वाज परफेक्ट सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड ओनली इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी डिस्कशन होगा अमंग द मेंबर्स होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सेक्रेसी इन दैट केस। So these were the various limitations of this cooperative society. So there are some questions in this topic. Whether you will able to answer this question or not. One by one. First one is, in cooperative societies, liability of the members is anyone? In cooperative societies, liability of the members is, anyone can answer? In cooperative societies, liabilities of the members is limited. Limited. Very good. Next one is, to form a cooperative, there should be at least how many members?
To form a cooperative, there should be at least how many members? 10. That is 10. The maximum number in a cooperative society is, in most of the cases, it is unlimited. In most of the cases, it is unlimited. Next one is primary motive of cooperative is. We have already discussed the main motive of cooperative society is self help and mutual help. खुद की मदद करें और ग्रुप की मदद करें, आपके जो मेंबर्स हैं उनकी मदद करें. दैट इज सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प. Next one is maximum rate of dividend that can be paid to the members on share capital in cooperative society is 10%. is 10%. Very good. But in your book it has been given 9%. So उसको आप चेंज कर लेंगे, उसे 10% कर लेंगे. Now move to the next unit. Move to the next unit, that is forms of business organization 2. तो वन बाय वन ये बहुत ही आसान है, सिर्फ मैं इसे पॉइंट करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा. तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा नहीं है. तब हम लोग मोडल सब लगभग कंप्लीट कर लिए. ठीक. तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 3, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी तक हम लोगों ने देखा वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ये हम लोगों ने वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा. तो अभी आपको बोला जाएगा कि व्हिच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट. सो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे अच्छा है. आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसको ध्यान में रखते हुए यू हैव टू चूज द बेस्ट. आपको, क्योंकि मैं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा अच्छा सोल ट्रेडिंग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरा बिजनेस पे मेरा कंट्रोल हो. बिजनेस शुड बी ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय मी ओनली. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. सोल ट्रेडिंग बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन पूरा कंट्रोल होगा, पूरा सेक्रेसी मेंटेन किया जाएगा. ठीक है. सोल ट्रेडर, एज ए सोल ट्रेडर आई विल बी सेल्फ मोटिवेटेड टू वर्क मोर एंड मोर. ये सब सारा उसका मेरिट है, बहुत सारा उसका ड्रॉबैक भी है. और ड्रॉबैक क्या हो जाएगा? लिमिटेड रिसोर्सेज होगा. कैपिटल तो जो मैं लगाऊंगा वही होगा. ठीक. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि अ पर्सन कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल द फील्ड. सारे फील्ड को वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी हो जाएगा और अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा. तो हर एक जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सभी का मेरिट भी है, डीमेरिट भी है. ठीक है. तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज बेटर. इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी, इसीलिए आप नहीं बोल सकते हैं कि एकदम बेस्ट वन इज दिस. तो मैं उसका ड्रॉबैक बता दूंगा, तो उसका बेस्ट वन जो है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. तो कोई आप इस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द वर्स्ट. ऐसा कुछ नहीं. हर एक का अपना मेरिट है, अपना डिमेरिट है. तो एज पर योर नीड, एज पर योर चॉइस, यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और यू हैव टू फॉर्म योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द कैपिटल. आप अपना वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं. सो वन बाय वन रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एक आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बेस्ट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे. तो ये हम लोग बहुत सारा पॉइंट करेंगे. अब मैं इसे बताता जाऊंगा कि ये पॉइंट लेकर चलेंगे तो सबसे बेस्ट फॉर्म क्या होगा. तो फर्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन. ईज ऑफ फॉर्मेशन. तो सबसे ईज ऑफ फॉर्मेशन, सबसे आसानी से किसको हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो हम हमेशा कंपेयर करेंगे ईज ऑफ फॉर्मेशन. यदि हम लोग देखेंगे सबसे आसान, कोई आसान तरीके से हम लोग कौन सा फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, दैट इज सोल ट्रेडिंग बिजनेस, दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. तो ईज ऑफ कंपनी की बात करें तो उसमें तो देयर आर वेरियस लीगल
फॉर्मेलिटीज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज है जो आपको पूरा करना होगा। तो यदि ईच के सबसे आसानी से क्या एस्टेब्लिश होगा, हम लोग बोल सकते हैं सोल ट्रेडिंग। ठीक, नेक्स्ट सेकंड करें, स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल। सबसे ज्यादा कैपिटल रेज करने का स्कोप किसमें है? तो सबसे ज्यादा कैपिटल रेज करने का आपका स्कोप है किसमें? सोल ट्रेडिंग में बोला कि सिंगल मैन वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, पार्टनर्स में पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे, बट इन केस ऑफ कंपनी सबसे ज्यादा कैपिटल उसमें होगा। तो आपका स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल के केस में सबसे ज्यादा आपका कंपनी के केस में है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, तो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी मीन्स सबसे, अब फिर लायबिलिटी को यदि ध्यान में रखें तो सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप के केस में देखें कि द पार्टनर्स एंड सोल ट्रेडर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, उन लोगों का लायबिलिटी अनलिमिटेड थे, बट इन केस ऑफ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड। यदि लायबिलिटी को ध्यान में रख के करेंगे तो कंपनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि दिस इज द बेस्ट, वो वेरियस पॉइंट्स है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। अच्छा मुझे ये ध्यान देना है तो उसको बेसिस पे मुझे कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सुटेबल होगा। तो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी को देखें, लायबिलिटी को ध्यान में देखें तो कंपनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, तो यदि आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल सोल ट्रेडिंग है। आज मैं राशन दुकान चला रहा था, नहीं चला, छोड़ो, कल मिठाई दुकान में स्टार्ट कर सकता हूं, बहुत ज्यादा इससे फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में एज अ हैवी इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड इन परचेजिंग प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, ये सब करने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वहां पे आप उसको चेंज करना वो मुश्किल है। आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप सीमेंट किए हैं, उसको आप फिर कॉटन टेक्सटाइल करना वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, वो आप देयर इज उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के केस में आपका सोल ट्रेडिंग विल बी द बेस्ट वन। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अब स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी को यदि मैं कंसीडर करूं तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में तो प्रॉब्लम है। सोल ट्रेडिंग के केस में यदि ऑनर के साथ कुछ हुआ, उनका डेथ हो गया, एक्सपायर कर गए, जो भी हो गया उनके साथ, तो आपका पार्टनरशिप, आपका जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है बंद हो जाएगा। बट इन केस ऑफ कंपनी जो है मोर स्टेबल है और उसका जो परपेचुअल सक्सेशन उसका हम लोग पॉइंट किए थे, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गोज ऑन फॉरएवर, तो उस पे वो बेस्ट है। तो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को यदि हम लोग ध्यान में दें तो बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। तो इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, तो यदि मैनेजमेंट के देखें तो सोल ट्रेडिंग में सोल ट्रेडर को ही सारा काम करना है, तो अ पर्सन कैन नॉट बी इफिशिएंट और इफेक्टिव इन ऑल द फील्ड, हर एक फील्ड का वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो यदि आपको मैनेज इफेक्टिवनेस चाहिए, आपका वर्किंग इफेक्टिव चाहिए, तो कंपनी इज द बेस्ट फॉर्म बिकॉज यू कैन हायर एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड। एचआर हायर किए, मार्केटिंग मैनेजर हायर किए, फाइनेंस मैनेजर हायर किए, वो आप कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन, तो सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, बट इन केस ऑफ कंपनी उसमें आपको एज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो उसको जो भी कंपनीज एक्ट में वो सारा उसे लीगल फॉर्मेलिटी और सारा फॉर्मेलिटीज करना होगा। ठीक, बिजनेस सेक्रेसी, तो बिजनेस यदि आपको सेक्रेसी मेंटेन करना है तो व्हिच वन इज द बेस्ट? सोल ट्रेडिंग विल बी द बेस्ट। यदि आपको सेक्रेसी मेंटेन करना है तो सोल ट्रेडिंग विल बी द बेस्ट बिकॉज इन केस ऑफ कंपनी और company you cannot maintain secrecy because your books of account will be mentioned in the, you can show on the website of the company your books of account as annual report. ठीक है, so in case of for the purpose of maintaining secrecy of the business, sole trading business is the best one. Now tax burden, तो in case of sole trading and partnership business they have to file the tax as an individual, as a general public, or filing their tax return. Only they have to show income under the, there are 5 heads under the, in income tax act there are 5 heads and those heads are income from
salary, income under the head house property, income under the head business and profession, income under the head capital gain, income under the head other sources. So under income under the head business and profession, they have to record their profits or losses. ठीक, तो जस्ट लाइक सिंपल इंडिविजुअल, जस्ट लाइक जनरल पब्लिक, दे हैव टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न. बट इन केस ऑफ ए कंपनी, the tax burden on company is quite more. So for domestic company, there are certain points related with tax burden. So for domestic company with annual turnover, here turnover means sale. Whenever I will say turnover, that means sale. The domestic company with annual turnover up to rupees 250 crores, they have to pay tax at the rate of 25%. मीन्स जो भी डोमेस्टिक कंपनी, जो भी इंडियन कंपनी हैं, जिनका एक साल में उनका जो सेल है वो 250 करोड़ तक का है, तो उनको 25% अपना जो भी प्रॉफिट है उसका टैक्स देना पड़ेगा. नो, जिनका भी 250 करोड़ से ज्यादा का सेल है, उनके लिए टैक्स बर्डन है 30%. उनका प्रॉफिट का 30% डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. और इनके जो फॉरेन कंपनी, टैक्स बर्डन इज 40%. ठीक है, तो अब सोचिए कि इनका 25%, 30% जो भी आपको प्रॉफिट है, डायरेक्टली गवर्नमेंट उसका टैक्स ले रहा है. तो टैक्स बर्डन इन केस ऑफ ए कंपनी इज क्वाइट हाई. यदि टैक्स के अनुसार देखें तो सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए सही होगा. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट एंड द 10th पॉइंट इज ऑनरशिप, कंट्रोल. तब आप बिजनेस से पूरा कंट्रोल चाह रहे हैं कि मेरा कंट्रोल हो, बिजनेस जैसे मैं चाहूं वैसा चले. तो यदि आप पूरा का पूरा कंट्रोल चाह रहे हैं तो सोल ट्रेडिंग बिजनेस विल बी द बेस्ट सुटेड वन फॉर यू. आपके लिए सोल ट्रेडिंग बिजनेस बेस्ट होगा. ठीक, क्योंकि इन केस ऑफ कंपनी तो क्या होगा, ऑल द शेयर होल्डर्स विल बी द ओनर ऑफ द कंपनी, तो वहां पे आपका उतना कंट्रोल नहीं होगा बिजनेस पे. लेकिन सोल ट्रेडिंग केस में आपका पूरा बिजनेस आपका कंट्रोल होगा. तो इन सब पैरामीटर्स को, इन सब फीचर्स को हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपको किस चीज की जरूरत है. नेक्स्ट वन इज क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो बोल रहा है द डिसीजन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम्स इंपोर्टेंस एट 2 स्टेजेस ऑफ अ बिजनेस. तो आपका कौन सा बिजनेस आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका चॉइस करना है, वो आपको 2 बार वो डिसीजन लेना होगा. फर्स्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या, और सेकेंड एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन. तो बोल रहा है क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. अब क्या क्या चीज को कंसीडर करेंगे जब एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो. ठीक, तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस. अब नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स हियर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस जो है आप करना चाहते हैं. सीमेंट बनाना चाहते हैं, सीमेंट करना चाहते हैं, कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कि राशन दुकान करना चाह रहे हैं, कि आप क्या चाह रहे हैं, दैट इज योर नेचर ऑफ द बिजनेस. तो आप यदि छोटा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, एक राशन दुकान, मिठाई दुकान, वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो सोल ट्रेडिंग विल बी द बेस्ट वन. तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये चीज के आपको कंसीडर करना है. अच्छा, क्या बिजनेस करूंगा, अच्छा राशन दुकान करूंगा या मिठाई दुकान करूंगा, तो which one will be the best suited, that will be sole trading business. ठीक, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस. तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मींस कितना प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं आप. यदि कम प्रोडक्शन करके आप कम बना के आप, यदि आप इफ द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल, तो आपको क्या होगा, यू नीड a small amount of capital and there will be less risk. So in this situation sole proprietorship will be the best suited one for you. आप यदि कम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो कम प्रोडक्शन जो ही करेंगे तो आपको कम कैपिटल चाहिए, कम रिस्क होगा, तो ये आपका बेस्ट सुटेड है सोल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए. लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कंपनी विल बी द बेस्ट सुटेड वन. नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ ऑपरेशन. तो यदि आप एरिया जो है एक पर्टिकुलर सिर्फ लोकेलिटी में बेचना चाह रहे हैं तो सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप
जो आपके लिए सही होगा। पूरा इंडिया में अपना बिजनेस फैलाना चाह रहे हैं, पूरा इंडिया में वो पूरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाह रहे हैं, तो कंपनी विल बी द बेस्ट सुटेड वन। कि आपको वहां भी ब्रांच अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो कंपनी जो है आपके लिए सही होगा यदि आप बड़े एरिया में काम करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट डिजायर ऑफ कंट्रोल, फिर वही आ गया डिजायर ऑफ कंट्रोल। आप क्या चाह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल आपके हाथों में रहे, तब तो सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट वन। यदि कंट्रोल आप उतना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आप अपना बड़ा बिजनेस चाह रहे हैं, तो कंपनी विल बी द बेस्ट सुटेड वन। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल, कम कैपिटल चाहिए, कम कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप इज द बेस्ट सुटेड वन। कम कैपिटल से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बहुत कैपिटल चाहिए, आप लोग करोड़ों में बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो कंपनी इज द बेस्ट सुटेड वन। आप शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, बैंक लोन फ्रॉम बैंक्स आप लेके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, आप रिस्क कम लेना चाह रहे हैं तो सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट। और लायबिलिटी कम चाह रहे हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी का केस है, वो तो ओनली इन केस ऑफ कंपनी है। कंपनी के केस में द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड, बट इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर अनलिमिटेड। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आप लायबिलिटी कितना चाह रहे हैं, रिस्क क्या चाह रहे हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन, हम लोग बार बार देख रहे हैं कि इन केस ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, बहुत ज्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज है, आपको स्टार्ट करना बंद करना इसे सारे में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी है। बट इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक, अब है तो दीज वर द क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। आप बिजनेस एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये सब आपका क्राइटेरिया होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ ऑपरेशन, डिजायर फॉर कंट्रोल, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये सब आपको सारे कंसीडर करेंगे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेलेक्ट the form of business organization that is best suited for you. Now next one is criteria at the time of expansion. आप जब एक्सपेंशन करना चाह रहे, बिजनेस बढ़ाना चाह रहे, तब आप क्या क्या चीज को कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए है नीड फॉर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपको जो ही एक्सपेंशन करना चाहेंगे, आप बिजनेस अपना बढ़ाना चाहेंगे, तो आपको ज्यादा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा। नीड फॉर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, आपको वहां का बिजनेस करना होगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल और आपको ज्यादा करना होगा। नीड फॉर स्पेशलाइज सर्विसेज, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, और नया फिर अपॉइंटमेंट करना होगा, आपको स्पेशलाइज सर्विस भी चाहिए होगा। इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, आप जो ही बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका ठीक, आपको ज्यादा और गवर्नमेंट को और ज्यादा टैक्स देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इंक्रीज इन द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका कंट्रोल भी में भी प्रॉब्लम आएगा कि आप एक्सपेंशन करेंगे, जो ही आपका बढ़ते जाता है तो आपका कंट्रोलिंग में कोई, जो ही आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा, बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा, तो आपका कंट्रोलिंग में भी प्रॉब्लम आएगा। दीज वर द वेरियस प्रॉब्लम्स व्हाइल एक्सपेंशन ऑफ ए बिजनेस। ठीक, तो ये हम लोग देखें, वो छोटा यूनिट था इसलिए बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। मुझे लग रहा है इसके सारे आंसर आप लोग कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट यूनिट इज बिजनेस प्रमोशन। उसमें हम लोग हल्का देख लें तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ECO 01 कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग ठीक ठाक इसका आंसर भी कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर तो बोल रहा है, बहुत को कंफ्यूजन है। एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन मोर और लेस आर द सेम थिंग, बहुत का ये कंसेप्ट है। इन एंटरप्रेन्योर जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया जिसका मीनिंग है टू अंडरटेक। मतलब कुछ काम करने के लिए आप काम करना है आपको, तो वही है टू अंडरटेक। तो एंटरप्रेन्योर इज बीइंग derived from the word
इंटरप्रेंडेर मीन्स टू अंडरटेक। इसको हम लोग हल्का पहले इसको समझ लें, उसके बाद हम लोग इसको फिर डिटेल में करेंगे। एंटरप्रेन्योर तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में पहले एक कहानी के द्वारा इसको हम लोग समझने की कोशिश करें कि होता क्या है। तो बोला जाएगा कि ये बिजनेस है कि एंटरप्रेन्योर है, वो आपको देखना होगा। तो पहले मैं उससे एंटरप्रेन्योर उसका दो फीचर्स में बता दूंगा कि एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इनोवेटिव एंड रिस्क टेकर। Entrepreneur is one who is innovative and risk taker। वो इनोवेटिव है और रिस्क टेकर है। तो वो इनोवेटिव और रिस्क टेकर, इनोवेटिव मीन्स कुछ नया। जब भी इनोवेशन बोले तो कुछ नया, दैट इज इनोवेटिव। अब मान लीजिए कि बोला जा रहा है, एक फ्रेज है, all businessmen या all entrepreneurs are business persons but all business persons are not entrepreneurs। मीन्स हर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस पर्सन है, लेकिन हर एक बिजनेस पर्सन एंटरप्रेन्योर नहीं है। ठीक, तो ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस पर्सन्स बट ऑल बिजनेस पर्सन्स आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। तो ये है, तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस पर्सन्स बट ऑल बिजनेस पर्सन्स आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसे एक छोटी सी एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने वेजिटेबल्स बेचने का एक बिजनेस स्टार्ट किया। डे इन डे आउट मैं वही काम कर रहा हूं। मैं जरा दूर जाके, मैं शहर से दूर जहाँ पे फार्मर्स है वहां से डायरेक्ट वेजिटेबल्स परचेज करता हूँ, यहाँ के बेचता हूँ, और वही अपना एक मेरा शॉप है, वहीं पे अपना वो सब्जी बेचने का काम करता हूँ। ठीक, डे इन डे आउट वही। आफ्टर working for 10 to 15 years there is no changes in me। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। मैं डे इन डे आउट वही सब्जी वेजिटेबल्स बेचने का काम करता हूँ और जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कोई उसमें नया कुछ नहीं। मैं वही ला रहा हूँ, उसे बेच रहा हूँ, ला रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ला रहा हूँ, बेच रहा हूँ, अपना कुछ प्रॉफिट को अपना घर चल रहा है। तो ये जो है, यदि इस तरह का वेजिटेबल सेलर है तो आप जो है बिजनेसमैन हो सकते हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हर एक एंटरप्रेन्योर तो बिजनेस करेगा ही, वो बिजनेसमैन है, लेकिन हर एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बिजनेस तो करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बिजनेस जो है मोर और लेस हम लोग उसको सेम मानते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या है? इनोवेटिव। आपको क्या करना होगा? रिस्क टेकर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर एक जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन उससे वो बंधा हुआ नहीं रहेगा, किसी तरह बेचा जाता है वो उससे बंधा हुआ नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? हमेशा नया सोचेगा, हमेशा नया ढंग से वो मतलब बिजनेस करने की कोशिश करेगा, और कुछ नया, और कुछ नया, ये नहीं और कुछ नया, और कुछ नया, इसमें और क्या हो सकता है, और इसमें क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इस ढंग से यदि आपकी सोच है तब आप हैं एंटरप्रेन्योर। बिजनेस तो करेंगे ही लेकिन हरदम अपने आप में चेंज करते रहेंगे, हम इसमें बंधे हुए नहीं रहेंगे। कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कि जैसे चल रहा है वैसे मैं भी बिजनेस करूं, वो नहीं, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। तो आप एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर का एक मेन फीचर है कि एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इनोवेटर, कुछ नया करने की सोचेगा और रिस्क लेगा। तो अभी इंडिया में यदि आपको एग्जांपल दो तो अभी सबसे ज्यादा बिजनेस में रिस्क कौन लिया? तो रिस्क लिया, मैं बोल सकता हूँ रतन टाटा। यदि रतन टाटा का मैं एग्जांपल, रतन टाटा को मैं बोल सकता हूँ वो एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक, अब रतन टाटा को एंटरप्रेन्योर हम लोग बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये गट्स शो किया। उन्होंने बोला अच्छा मैं 1 लाख रुपीज का कार लाऊंगा। कार तो 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख में अच्छे खासा कार मिल रहा है, अभी पूरा अवेलेबल है। मारुति, हुंडई, जो लेना है लीजिए, होंडा सिटी या होंडा, बहुत सारे आपके पास अवेलेबल हैं। उन्होंने क्या कहा? मैं लकटकिया गाड़ी लाऊंगा, 1 लाख रुपया में गाड़ी, जो 2 व्हीलर्स में चल रहे हैं सभी को मैं 4 व्हीलर्स में लाऊंगा।
उसके लिए उन्होंने टाटा नैनो का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक, तो दैट वाज इनोवेटिव आइडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम लगा। बाकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सभी तो डरे, कह रहे यार ये 1 लाख रुपीज में क्या गाड़ी आने वाला, क्या गाड़ी आने वाला। और ये हुआ कि वो फेलियर साबित हुआ, लेकिन तब भी उनमें उन्होंने क्या किया, इनोवेटिव, कुछ नया लाया, कुछ नया करने की सोची। ठीक है, रिस्क हुआ, लॉस हो गया, वो टाटा नैनो का प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद हो चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ नया किया। तो उनको मैं बोल सकता हूं कि एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया उन्होंने लाया। ठीक, और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। आपका हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने कार तो है, कार तो फोर्ड कार जो 8-10 लाख रुपए में इजीली आपको मिल रहा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी फोर्ड कार को सस्ता में अवेलेबल कराया टू द जनरल पब्लिक। तो ये जब, और हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले हम लोग शैम्पू की बात करें तो शैम्पू जो है एक बहुत बड़े डब्बे में आती है, कितना निकालना है पता नहीं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग बाथ कितना शैम्पू लें अब अंदाजा से निकालता हूं। ठीक, अब उसका दाम है 200 रुपया या 300 रुपया, उसका एक डब्बे का दाम है, जो भी उसका 500 ml या जो भी उसका क्वांटिटी हो। ठीक, तो वो क्या हुआ, बहुत के पहुंच से बाहर है, बहुत को उसे नहीं खरीद पा रहे थे। तब सोचिए क्या इनोवेशन आएगा, पहुंच आया। कोई ने आइडिया लगाया, अरे यार ये तो अभी भी सभी के पहुंच के बाहर है, 200 रुपए का कोई शैम्पू लगाने को तैयार नहीं होगा, क्या किया जाए, पाउच लाया जाए। तो पाउच ला के क्या हुआ, वो 1 या 2 रुपया 2.5 रुपया में अवेलेबल होने लगा, तो कोई भी लगा सकता है, गरीब से गरीब आदमी भी सप्ताह 10 दिन में एक बार वो पाउच लगा सकता है, अपने बालों में शैम्पू कर सकता है। तो जो ट्रेडिशन है उससे हट के कुछ सोचें तो वो एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल, और इसमें हम लोग जो एंटरप्रेन्योर का मैं और यदि कुछ एग्जांपल दूं तो आजकल ये टैक्सी सर्विसेज का ही एग्जांपल लो। अच्छा, ओला, उबेर, ये सब जो है, अब सोचिए क्या है ये, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने रिवॉल्यूशन ला दिया, तो कुछ नया। अब सोचिए ओला गाड़ी है कि नहीं और का चलाएंगे कोई और, आपको ओला कंपनी को आपको पेमेंट भी होगा। ठीक, अब सोचिए कि ओला कंपनी, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मुझे मेरे घर से स्टेशन है 8 किलोमीटर, जब ये ओला कंपनी उबेर कंपनी लॉन्च नहीं हुआ था तो मुझे ऑटो से जाना पड़ता था, और ऑटो जो है 150 रुपीज भाड़ा लेता था मुझे पूरा रिजर्व करके जाने में। ओला आने से अब सोचिए कि आपको कार का फैसिलिटी मिल रहा है, एसी का फैसिलिटी मिल रहा है, आप इजीली आराम से घर जा सकते हैं, सिर्फ मोबाइल से उसे बुक करना है। आप अभी मुझे वो 120 रुपीज चार्ज कर रहा है, मैं आराम से एसी में हवा खाते हुए अपने घर की ओर जाता हूँ। ठीक, तो ये जो ओला कंपनी, उबेर कंपनी, क्या है ये, दीज आर द एंटरप्रेन्योर, कुछ नया। कार टैक्सी सर्विस तो बहुत दिनों से प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन बहुत हाई रेट था, तो उन्होंने क्या किया कि ये सब सर्विस है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वो मोबाइल के थ्रू, आपका स्मार्टफोन के थ्रू वो गाड़ी बुक होने लगा। अब जो है आप इजीली बुक कर सकते हैं और आपको चीप रेट पे मिलेगा, सभी को खुश, कस्टमर भी खुश, ओला कंपनी भी खुश। ठीक, तो मैं इन लोगों को एंटरप्रेन्योर कहता हूं कि जो कुछ नया है, ट्रेडिशनल से हट के कुछ नया, वो एक में बंधे हुए नहीं रह सकते कि ऐसा बिजनेस चलता है चलो मैं भी वैसे ही बिजनेस करूंगा। तो आप इस तरह के बिजनेस करते हैं तो आप जो बिजनेसमैन कहलाएंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएंगे। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको कुछ इनोवेशन करना होगा, आपको कुछ नया करना होगा, समथिंग न्यू, कुछ रिस्क लेना होगा। जैसे मैंने रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया, वो टाटा नैनो रिस्क लिया, ठीक है, कुछ नया किया, 1 लाख की गाड़ी। ठीक, अब मैं जैसे शैम्पू पाउच की बात कर रहा हूं, वो सक्सेस हुआ। ठीक, ओला उबेर सक्सेस हुआ। ठीक है, तो ये लोग हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं कि नहीं, ये ट्रेडिशनल नहीं, कुछ नया क्या हो सकता है और बिजनेस। ठीक, अच्छा, अभी जैसे आपका ऑनलाइन ही क्लास हो रहा है, ठीक, बहुत सारे हैं जो आजकल क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के आपके ऑनलाइन जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बैजू, अनअकैडमी.com,
बहुत सारे इस तरह के भी हैं। तो लोग क्या है, मतलब सोचिए समथिंग न्यू कुछ नया करके किए हैं, तो वो लोग आपका एंटरप्रेन्योर हो। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये हम लोग मोबाइल या विद हेल्प ऑफ स्मार्टफोन हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्होंने ये आपको सर्विस प्रोवाइड की। तो दीज आर द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये एंटरप्रेन्योर हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इनोवेशन किया, उन्होंने रिस्क लिया। सो प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर यदि बोला जाए कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, हम लोग सिंपल इसका यदि ठीक, इसका जो सिंपल यदि हम लोग बोले एंटरप्रेन्योर हुई एंटरप्रेन्योर, तो हम लोग बोलेंगे इसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो इसका डेफिनेशन दिया गया है, अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और बिजनेसेस। अ पर्सन, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डिफिनेशन है ऑफ एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसा एक व्यक्ति जो कि बिजनेस या बिजनेस सेट करता है, वो फाइनेंशियल रिस्क लेता है और ये होप करता है कि आपको प्रॉफिट होगा। तो एंटरप्रेन्योर जब भी बोले कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, तो इनोवेशन एंड रिस्क बेयरिंग आर द टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन, अभी हम लोग जस्ट इनोवेशन के बारे में इतनी पढ़ाई की। इनोवेशन मीन्स समथिंग न्यू। अच्छा, और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, नोकिया फोन। तो आजकल क्या है कि सारे कंपनीज को बहुत ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है इन रिसर्च। रिसर्च पे आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को हमेशा नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए, हमेशा नया 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 चाहिए। ठीक, तो आज से 10 साल पहले की बात करूं, जब नया नया फोन आया था, तो नोकिया नोकिया वॉज द मार्केट लीडर। नोकिया मार्केट लीडर था, वो फिनलैंड की कंपनी है। तो नोकिया वॉज द मार्केट लीडर। तो नोकिया क्या किया, उनके पूरा मार्केट लीडर था, मैक्सिमम के पास नोकिया फोन ही उसमें हुआ करता था। तो उन्होंने रिसर्च पे कुछ नया में उन्होंने विश्वास नहीं किया कि चलो फोन तो बिक ही रहा है, बिकेगा बिकेगा बिकेगा। ठीक, तो उनको मैं बिजनेसमैन कह सकता हूं, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। इसी बीच में क्या हुआ, सैमसंग, मोटोरोला, बहुत सारे कंपनीज आ गए जो कि इसमें रिसर्च किए, स्मार्टफोन आ गया। तो स्मार्टफोन जो ही आया, नोकिया आउट ऑफ मार्केट चला गया। ठीक, तो इसीलिए सारे कंपनीज को इनोवेशन में समथिंग न्यू समथिंग न्यू समथिंग न्यू, दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड, अ कंपनी शुड स्पेंड मोर एंड मोर मनी ऑन इट्स रिसर्च। रिसर्च उन पे ज्यादा खर्च करनी चाहिए। तो ये है इनोवेशन। इनोवेशन में समथिंग न्यू, क्योंकि आप पुराने से बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते। ठीक, नेक्स्ट वन इज रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग, तो जहां बिजनेस है वहां रिस्क है। तो सोचिए, अब कुछ नया करने में हमेशा आपका रिस्क है। कुछ नया करेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका मैंने बोला इनोवेशन मीन समथिंग न्यू। तो आप जब भी कुछ नया करेंगे तो रिस्क तो है, लेकिन हो सकता है कि आप एकदम बहुत अच्छा भी हो जाए। जैसे बेजूम आया, लगा था चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन बहुत चला। फेसबुक आया था, लगा चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन बहुत चला। आजकल सभी को फेसबुक में अकाउंट है। ठीक है, तो रिस्क तो है। और जैसे मैं टाटा नैनो का एग्जांपल लेता हूं, इनोवेशन था, 1 लाख की गाड़ी बोला गया था, 1 लाख में कार आएगा, लेकिन रिस्क हुआ, नहीं चला, लॉस हो गया। तो है, आप नया करेंगे तो वहां तो रिस्क होगा ही। ठीक, अभी सोचिए कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अब कितना ज्यादा मतलब ये नया नया आ गया। कभी हम लोग सोच नहीं पा रहे थे, पता नहीं। मैं रांची में गया था, वहां देखा कि वेजिटेबल बास्केट करके एक साइट वहां पे था, उसको वो ऐप डाउनलोड करना था। वो एवरी डे इन द मॉर्निंग वो रेट प्रोवाइड करता था कि पोटैटो इतना, ओनियन इतना, ठीक है, ये पल्से मतलब ये साग इतना, ये इतना, ये लेडी फिंगर इतना। तो इसका सारे का रेट्स देते थे। आप जो है उसको सेलेक्ट करके उसे भेजेंगे, अपना एड्रेस देंगे, तो आपको होम डिलीवरी करेगा। अब सोचिए, और क्या फैसिलिटी चाहिए थी। ये क्या है, हम लोग को आदत है वेजिटेबल शॉप पे लाइन लगाने की, राशन दुकान पे लाइन लगाने की। लेकिन आजकल क्या हो गया, कुछ नया मीन्स आजकल बड़े जैसे बिग बाजार है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो आजकल होम डिलीवरी भी करने लगे हैं। तो दैट मीन्स समथिंग न्यू, कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करना है। अब वो मिंत्रा हुआ, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये क्या है, ये
ये सब ऑल दीज आर इनोवेटिव बिजनेसेस, ये सारा इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है। क्या है, आपको घर बैठे आजकल सारा सामान आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो दीज आर इनोवेटिव आइडिया। मैं तो सारे बुक अपने जो है वो फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगाता हूँ, क्योंकि मैं बुक स्टोर जाता हूँ तो उसमें जो प्राइस लिखा रहता है उतना ही वो बोलते हैं, 250 रुपीज। तो बोलेंगे अच्छा आप सर लीजिए 10 रुपीज आपका छोटा, 240 रुपीज। मैं वही अमेजन में देता हूँ तो 200 रुपीज, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। जो एस्टेब्लिश किया गया स्टार्टिंग में तो लगा होगा कि चलेगा कि नहीं, ओला उबेर स्टार्ट किया वो लगा कि चलेगा कि नहीं, लेकिन वो इनोवेशन था, कुछ नया था, लेकिन आपका अच्छा चला। ठीक है, अब बहुत प्रॉफिट, बहुत ज्यादा ही लोग प्रॉफिट भी इनको हो रहा है ये कंपनियों को। ठीक, तो इसीलिए बोला गया कि ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेसमैन बट ऑल बिजनेसमैन आर नॉट एंटरप्रेन्योर। सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन सारे बिजनेस जो हैं, बिजनेस मतलब ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेसमैन, सारे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं, लेकिन सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग बिजनेसमैन तो कहलाएंगे लेकिन वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। ठीक, तो नो अब दो तीन टॉपिक और है, हम लोग हाफ एन आवर है, हम लोग कंप्लीट कर ले तो आपका ये पूरा CO1 कंप्लीट हो जाएगा। नो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स वो ट्रेडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस है वो फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। तो मेनी एंटरप्रेन्योर्स हु स्टार्टेड देयर बिजनेसेस रेसिस्ट बीइंग फॉलोइंग रूटीन हैबिट्स। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट किए, वो जो ट्रेडिशनल वे है वैसा वो नहीं पसंद कर रहे हैं, वो चाहते नहीं मैं अपना खुद से अपना नया स्टाइल से करूंगा, नया ढंग से करूंगा। तो वो एंटरप्रेन्योर्स का हमेशा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कि अपनी सोच होनी चाहिए, अपने जो हो कुछ नया करने की उनको कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क means willingness to work and work hard। मतलब willingness to work means क्या हो गया, आपको वर्क करने की चाहत और बहुत कठिन मेहनत जो है एक बहुत बड़ा फीचर्स है एक एंटरप्रेन्योर का। वो दिन रात नहीं देखेंगे, वो अपने बिजनेस में मुझे सक्सेस करना है तो करना है, वो उनका डिटर्मिनेशन है, तो वो उनका हार्ड वर्क है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिजायर टू अचीव गोल्स। तो उन्होंने जो गोल सेट किया है वो उनको पाने के लिए दिन रात कोशिश करेंगे। तो ये डिजायर टू अचीव गोल, उनको वो पाने का डिजायर है कि मैं ये गोल अचीव करूंगा, ये उनका डिजायर है। नेक्स्ट वन इज फोरसाइट एंड डायनामिक आउटलुक। फोरसाइट मीन्स इफ यू आर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इन ए करेक्ट मैनर तो आपको बोलेंगे आपका फोरसाइट ठीक है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर जो है, अब सोचिए ओला उबेर या फ्लिपकार्ट अमेजन, उन्होंने सोचा कि अच्छा इस तरह की यदि सर्विस प्रोवाइड की जाए, इस तरह की यदि सर्विस प्रोवाइड की जाए तो आपका मतलब सक्सेस होगा। वो सोचिए उनका वो सोच था वो, और वो उनका जो प्रेडिक्शन था वो भी सही हुआ। दैट इज फोरसाइट एंड डायनेमिक आउटलुक। नेक्स्ट वन इज ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस मीन्स एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मीन्स कुछ भी नया कोई टेक्निक बताया, कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है, ऐसा नहीं हम लोग क्लोज माइंड किससे बोलेंगे, क्लोज माइंड मीन्स वो कुछ नया नहीं सोच सकता, कुछ नया अपने नहीं, जो उसने सोचा वही है, वो ऐसा नहीं है। मतलब एंटरप्रेन्योर का हमेशा ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड मीन्स कुछ नया, कहीं कुछ मीटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है, कुछ उसको नया मिल गया तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेना, ये सही है, इसको हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए। दैट इज ओपन माइंड। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक मीन्स हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, नहीं ये मैं बिजनेस करूंगा, ये जरूर से जरूर सक्सेस होगा, ये उनका सोच होना चाहिए। तो ये हो गया ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स द पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिव ऑफ द फ्यूचर, ये पॉजिटिव है कि नहीं, इस ढंग से होगा, ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो उनका आउटलुक होना चाहिए। और कभी लॉस भी होगा, लॉस भी हो रहा है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो उनको ये सोचना चाहिए दिस इज टेम्पररी इन नेचर, ये टेम्पररी है, कि इसको हम लोग ओवरकम करके हम प्रॉफिट जरूर होगा, ये फेज जरूर पार होगा, उसके बाद हम लोग सक्सेस जरूर पाएंगे। तो दैट इज ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। नेक्स्ट वन इज वर्किंग रिलेशनशिप।
तो वर्किंग रिलेशनशिप तो बोल रहा है कोई बिजनेस को सक्सेस होने के लिए उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस मोस्टली डिपेंड अपॉन इट्स वर्कर्स फर्स्ट एंड देन देयर लिंक्स विद अदर बिजनेस अंडरटेकिंग। तो जो भी मतलब जो भी बिजनेस का सक्सेस के लिए आपके वर्कर्स के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए और दूसरे बिजनेस अंडरटेकिंग के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए। तो ये जो है एंटरप्रेन्योर जो हमेशा वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा विद द एम्प्लॉयज एंड अदर बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक, नेक्स्ट गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड ऑर्गेनाइजर्स। तो ये जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा गुड ऑर्गेनाइजर होगा। गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड ऑर्गेनाइजर मींस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत है वो उसको इफिशिएंटली, आपका बिजनेस को इफिशिएंटली चलाने के लिए जो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो उसे अरेंज करेगा, वो आपका एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इनोवेटिव अप्रोच, ये इनोवेटिव एप्टीट्यूड। इनोवेटिव एप्टीट्यूड मीन्स इतना देर से हम लोग यही कर रहे हैं कि इनोवेटिव एप्टीट्यूड मीन्स समथिंग न्यू, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश, हमेशा कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश, हमेशा नया इन्वेंशन की कोशिश करना, ये है इनोवेटिव एप्टीट्यूड। तो ये फीचर्स है एक एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर में ये सब सारे फीचर्स होने चाहिए। इसीलिए बोला गया कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर जो है हल्का उसमें डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा समथिंग न्यू, हमेशा इनोवेटिव, हमेशा रिस्क लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेगा, जो चल रहा है चलते रहेगा, अभी मैं बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूँ, छोड़ो मुझे कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यही बिजनेस एज यूजुअल चलाते रहूंगा। तो वो बिजनेसमैन होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, समथिंग न्यू, इनोवेटिव एंड रिस्क बेयरिंग, हमेशा बोलेगा व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो उसका टू फीचर्स विल बी इनोवेटिव एंड रिस्क बेयरिंग आर द टू फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अच्छा, बिफोर लिविंग, आज हम लोग यदि खत्म करने से पहले PCO, that is preparatory course in commerce ना, ठीक। तो there were 18 units and in 4 class we have to cover all। ये तो ECO 1 तो ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा नहीं था, हम लोग एक एक मोरलेस 90-95% कोर्स पूरा आपको कवर करा दिया गया, एक एक चीज पढ़ा दिया गया। लेकिन आपका PCO में क्या करना होगा, किनको कहाँ का प्रॉब्लम, नहीं तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। कुछ सारा यदि मैं यूनिट यदि कंप्लीट करने की सोचूं तो 4 दिन में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो कुछ आपका टॉपिक है कि क्या करना है, उससे कुछ यदि आप लोग बता पाएंगे। क्योंकि सभी को पीसीओ का भी क्लास करना है, और वो जरा अकाउंटिंग है, वो जरा प्रैक्टिकल होगा, ये तो पूरा थ्योरी है। तो पीसीओ कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्लासेस, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराने होंगे, बहुत सारा आपको उसमें कंसेप्ट देने होंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और अदर बैकग्राउंड। BCA. What BCA? Yes, sir. You people are knowing nothing about commerce, no? No, sir. So how it is possible to complete all the 18 units in 4 class? It is better यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पहले से मुझे बता दें कि मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। Okay, sir. ठीक है, तो कल जो है मैं वो पीसीओ का जो बेसिक है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, जो वेरियस टर्म्स जो यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जरा अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग है, तो उसमें बहुत सारा आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मुझे छोटा छोटा आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने होंगे। ठीक है, Okay, तो sir. कल मैं जितना Okay, हो sir. पाएगा मैं कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट 3 क्लास जो है हम उसका हल्का प्रैक्टिकल हम लोग एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। Okay, sir. ठीक है, कल मैं उसको सिर्फ बेसिक आपका करा दूंगा उसका। ठीक है, Okay, sir. हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग लास्ट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर करके हम लोग अपना आज का कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका मोरलेस तो ईसीओ तो मैंने मतलब 90% तक तो कवर कर दिया लगभग। यदि आपका बुक होगा या मटेरियल होगा देखेंगे ईसीओ का,
ईसीओ 1 का हम लोग 90-95% कोर्स एक एक चीज हम लोग ने डिस्कस किया, एक एक चीज हम लोग पढ़ाई किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर करके हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो एंटरप्रेन्योर हम लोग अभी जस्ट किए, एंटरप्रेन्योर जो है और बिजनेसमैन अभी जस्ट हम लोग इतना देर से बोल रहे हैं कि दोनों डिफर है। एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेटिव होगा, रिस्क बेयरिंग होगा, और बिजनेस मैन जो होगा वो अपना ट्रेडिशनल वे में अपना बिजनेस चलाएंगे। तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर्स का जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ 7-8 पॉइंट है, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लें तो आज का हो जाएगा ये। नाउ फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट वन इज डेवलप एन आइडिया एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। डेवलप एन आइडिया एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर करेंगे क्या, वो बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस वो किस चीज का बिजनेस करेंगे, वो आइडिया डेवलप करेंगे। अच्छा ये चीज का बिजनेस करेंगे, ठीक है, कहां से फंड आएगा, क्या होगा, वो सब सारा वो अपना एनालाइज करेंगे। और एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी, तो पता नहीं देयर इज वन एनालिसिस जो कि आपका कंट्रोलिंग चैप्टर में है, दैट इज SWOT एनालिसिस बोला जाता है, SWOT। S means strength, W means या W refers to weaknesses, O refers to opportunities and T refers to threats। तो हर एक कुछ भी बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आप उसका SWOT एनालिसिस करेंगे। अच्छा ये इसका प्रोडक्शन करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेसेज क्या क्या होंगे, इसका अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगे, थ्रेट्स क्या क्या है। तो एंटरप्रेन्योर सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस वो अपना SWOT एनालिसिस करेंगे। तो यह था डेवलप्स एन आइडिया एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वेस। तो नेक्स्ट वन इज वो करेंगे क्या, ही मीन्स हियर एंटरप्रेन्योर कलेक्ट्स डेटा ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेज। कंज्यूमर्स का प्रेफरेंसेज क्या है, डिमांड किस चीज का है, ठीक, और मार्केट रिसर्च टेक्निक के द्वारा वो फाइंड करेंगे कि इसका कितना, कहां पे इसका ज्यादा डिमांड है, कहां पे इसका ज्यादा सेल कर सकते हैं। वो आपका एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या हो रहा है बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, करना क्या है, किस चीज का प्रोडक्शन करना, किसका भी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, कहां पे इसको मुझे सेल कर सकते हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे कि कस्टमर का आजकल डिमांड क्या है, कस्टमर का आजकल चॉइस क्या है, कस्टमर आजकल किस चीज का ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो वो हम लोग सर्वे करेंगे और कहां पे इसे बेचा जाए, कहां पे इसका ज्यादा डिमांड है, दैट इज पार्ट ऑफ योर मार्केट सर्वे। नेक्स्ट वन विल बी डिसाइड्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोगों ने देखा कि डेवलप एन आइडिया एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, हम लोग आइडिया और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किए। सेकेंड हो प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे, किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे और कहां पे उसका ज्यादा सेल होगा, वो आपने एनालिसिस किया। नेक्स्ट वन इज डिसाइड्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइड्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स देखा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इसमें आएंगे नहीं, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनी। तो किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एस्टेब्लिश करके इस चीज का प्रोडक्शन करेंगे। तो हर एक का अपना मेरिट डिमेरिट है, सोल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं कि कंपनी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे वो आइडिया डेवलप करना होगा कि वो डिसाइड करना होगा कि किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपने यूज करना है, कि डिसाइड्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स वेदर इट शुड बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अ पार्टनरशिप, अ कंपनी, आपको वहां पे डिसाइड करना है। नेक्स्ट वन इज डिसाइड्स लोकेशन। डिसाइड्स लोकेशन मीन्स ही डिसाइड्स लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, वो जो है फैक्ट्री का लोकेशन डिसाइड करेगा एट अ सुटेबल प्लेस। वो सुटेबल प्लेस पे क्या क्या चीज को कंसीडर करना होगा, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं, पावर सप्लाई है कि नहीं, वाटर फैसिलिटी है कि नहीं, लेबर सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स है कि नहीं, मार्केट से कितना नजदीक है, ये सब सारा चीज कंसीडर करने के बाद जो है वो लोकेशन डिसाइड करेगा। तो ही डिसाइड्स लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री एट ए सुटेबल प्लेस, ही डिसाइड्स लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री एट अ सुटेबल प्लेस। वो सुटेबल प्लेस पे डिसाइड करेगा कहां पे उसे हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक। अब है नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्ट्स नेसेसरी कैपिटल। अब जो है कहां से फंड का अरेंजमेंट करेंगे,
तो फंड का मैनेजमेंट, यदि सोल ट्रेडिंग बिजनेस आपने एस्टेब्लिश किया है तो आपका खुद का फंड होगा, रिलेटिव से लेंगे, ठीक, पेरेंट्स से लेंगे, अपना कुछ बैंक से लोन ले सकते हैं। यदि आपने पार्टनरशिप फॉर्म एस्टेब्लिश किया हुआ है तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, बैंक से लोन ले सकते हैं। कंपनी यदि एस्टेब्लिश किया हुआ है तो कहां से कैपिटल आएगा, शेयर के थ्रू आ सकता है, डिवेंचर के थ्रू आ सकता है, बॉन्ड के थ्रू आ सकता है, बैंक के लोन के थ्रू आ सकता है। तो कहां से आपका कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल कलेक्ट करेंगे, वो आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक, यदि आपने लार्ज इंटरप्राइज एस्टेब्लिश किया है तो फंड्स हैव टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक से आपका किस ढंग से आएगा, थ्रू शेयर्स और डिवेंचर, बैंक के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो ये सब आपका हुआ। तो डिसाइड आपने क्या क्या किया, ये फंक्शन में है कि किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, यू हैव टू डिसाइड अबाउट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सोल ट्रेडिंग होगा, पार्टनरशिप होगा, कंपनी का, वो डिसाइड किए, किस लोकेशन में करेंगे। ठीक, वैसा लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे सारा फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, फ्यूल हो, वाटर हो, लेबर हो, रॉ मटेरियल्स हो, मार्केट से नजदीक हो, ये सब देखना होगा। नेक्स्ट, कलेक्ट नेसेसरी कैपिटल। अब कैपिटल कहाँ से आएगा वो आपको डिसाइड करना है। ठीक, कि लार्ज इंटरप्राइज एस्टेब्लिश करना चाह रहे तो जनरल पब्लिक, बैंक लोन, यहाँ बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो ये सब आपको काम करना होगा। नेक्स्ट वन इज प्लेसेज ऑर्डर्स फॉर मशीनरी। तो प्लेसेज ऑर्डर्स फॉर मशीनरी मीन्स, अब आपने कंपनी या जो भी आपने बिजनेस एस्टेब्लिश किया तो नेक्स्ट फंक्शन विल बी यू हैव टू प्लेस ऑर्डर फॉर मशीनरी। आपको मशीनरी के लिए ऑर्डर देना होगा कि ये मशीनरी प्रोवाइड कीजिए, ये मशीनरी सप्लाई कीजिए। ठीक, तो ही प्लेसेज ऑर्डर्स फॉर मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स वो ऑर्डर प्लेस करेगा मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए और अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक, तो ये हो गया मशीनरी आ गया। अब उसका नेक्स्ट काम होगा रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। तो रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर अब है, ठीक, तो वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड, दैट इज स्किल्ड, अनस्किल्ड, डिफरेंट कैटेगरीज का आपको लेबर्स आपको रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो वो हो गया रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। आपको स्किल्ड चाहिए तो स्किल्ड लेबर्स विल बी पेड एट अ हायर रेट, अनस्किल्ड लेबर्स विल बी पेड एट अ लोअर रेट। वो आपको देखना होगा। अगर लेबर का आपने अपॉइंटमेंट किया। नो, नेक्स्ट वन विल बी डिजाइन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिजाइन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, तब तो बिजनेस आपका स्टार्ट होने वाला है। अब आपने डिसाइड किया कि चलो मैंने कंपनी एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अब कंपनी एस्टेब्लिश करना है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफर्स टू द हायरार्की। हायरार्की मीन्स, अच्छा, ये हायरार्की के मतलब क्या क्या मैं पोस्ट पे रखूंगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, सम पर्सन विल बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उन्होंने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अपॉइंट करेंगे, उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर अपॉइंट करेंगे। तो ये सब हायरार्की है, उन्होंने हायरार्की बना दिया कि सबसे टॉप पोजीशन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके बाद होगा चीफ जनरल मैनेजर का, उसके बाद पोजीशन होगा जनरल मैनेजर का, उसके बाद पोजीशन होगा प्रोडक्शन मैनेजर का, उसके बाद पोजीशन होगा सुपरवाइजर्स का, उसके बाद पोजीशन होगा लेबरर्स का। तो ये हो गया डिजाइन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दैट मींस यू हैव टू प्रिपेयर द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यदि इस तरह यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यदि मेरे कॉलेज का बोले कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यदि कॉलेज का बोला जाए तो सबसे टॉप पोजीशन है प्रिंसिपल, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद ऑल द पर्सन्स, अकाउंट्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, एकेडमिक पर्सन, उनके बाद है ऑल द एचओडीज, उसके बाद है टीचर्स। ठीक है, यदि ये कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। उसी तरह कंपनी का भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको डिसाइड करना है कि क्या स्ट्रक्चर होगा। तो उसने डिसाइड किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, उसके बाद सुपरवाइजर्स होंगे, वर्कर्स होंगे। ठीक है, ये मैं कंपनी का एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया। तो ये डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। यदि बहुत और बड़ी कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीजीएम के नीचे वो और कर सकते हैं कि जनरल मैनेजर मतलब जीएम फाइनेंस, जीएम एचआर, जीएम मार्केटिंग, इस हिसाब से, या जीएम मार्केटिंग,
इस हिसाब से भी वो लोग बना सकते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज फुलफिल फॉर्मेलिटीज एंड लॉन्चेज एंटरप्राइज। एंड द लास्ट उनका फंक्शन है कि एवरी टाइप ऑफ बिजनेस हैज सम फॉर्मेलिटीज व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज। हर एक में कुछ कुछ फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। ठीक, द फॉर्मेलिटीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर एक के लिए अलग अलग है। सोल ट्रेडिंग करेंगे उसका कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, यू कैन इजिली स्टार्ट। पार्टनरशिप में उतना लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, बट इनके सब कंपनी आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो आप you have to fulfill various formalities and you have to launch the your business enterprise। आपको बिजनेस इंटरप्राइज आप लॉन्च कर सकते हैं। तो ये था वेरियस आपका फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। नाउ कंपनी से रिलेटेड, और मैं सिर्फ इसी में आगे कंपनी से रिलेटेड दो टॉपिक और है। पार्टनरशिप तो हम लोग कर लिए, ये कर लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन, उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं हल्का आपको बता देता हूं ये होता क्या है। ठीक, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो बोल रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट। कोई कंपनी जो है, कंपनी जब स्टार्ट होता है तो उसे दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है। वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोला जाता है कि इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है। तो बोल रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसी तरह, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है उसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है कि कंपनी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इसमें रहेंगे। क्या क्या रहते हैं इसमें? नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्टेट इन विच, ये सब सारे चीज जो है इसमें मेंशन किए रहेंगे। कंपनी का नाम क्या होगा, किस स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड, वो इसमें मेंशन क्या रहेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में रहेगा किस चीज का बिजनेस करेंगे कि ठीक है कि क्या आपका एक्टिविटी होगा, तो द नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में होगा। ये सब सारे चीज जो है वो डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे। तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट में आपने बनाया है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी, आप उससे डेविएट नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए बोला जा रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, वो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। उसे क्या क्या मेंशन किया हुआ रहता है, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्टेट, मतलब कंपनी का नाम क्या है, किस स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है। ऑब्जेक्ट क्लॉज मींस द पर्पस, या किस चीज का प्रोडक्शन करने वाले, किस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ये मेंशन किया हुआ रहता है कि कितना आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल मींस वो कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया हुआ रहेगा कि अच्छा, तो ये जैसे हम लोग बार बार ये कर रहे हैं कि अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। तो क्या जब पैसे की जरूरत हो शेयर इशू कर लें, तब तो कंपनी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पैसे की जरूरत हुआ शेयर इशू कर लें, पैसे की जरूरत हुआ शेयर इशू कर लें। सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी, कंपनी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो होता क्या है, कंपनी हैज टू मेंशन ऑथराइज्ड शेयर। ऑथराइज्ड शेयर मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू। ऑथराइज्ड शेयर मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अ कंपनी कैन इशू। एक कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकता है, दैट इज बीइंग मेंशन इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दैट इज अंडर दैट कैपिटल क्लॉज। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया। सपोज अभी मुझे लग रहा है कि 10 लाख शेयर है, इशू कर सकते हैं 10 रुपया करके, मतलब 1 करोड़ रुपया मुझे शेयर से चाहिए। तो हो गया 10 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, या 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक, तो वो उसे मेंशन किया रहेगा वो कैपिटल क्लॉज में। उससे ज्यादा आप कभी शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। अब इट माइट बी पॉसिबल दैट एज पर योर रिक्वायरमेंट, अभी जितना की जरूरत है उतना इशू किए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू इशू ऑल द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एट वन गो, एक ही टाइम में सारा इशू कर दिए, जरूरी नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट में, अभी मुझे 5 ही लाख का जरूरत है, ठीक, तो मैं 50,000 शेयर इशू कर दूंगा 10 रुपए करके, हो गया 5 लाख का जरूरत, हो गया फुलफिल। तो मेरा मैक्सिमम नंबर जो है वो
उतना फिक्स किया हुआ है, 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, उससे ज्यादा आप नहीं इशू कर सकते हैं, एंड दैट इज बी मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज, वो कैपिटल क्लॉज में वो मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक, तो हम लोग देखें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट और इट इज जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, एंड इट स्टेट्स द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और जो है ये जो है कि कंपनी का रिलेशन जो है थर्ड पर्सन या आउटसाइड वर्ल्ड से किस ढंग से होगा वो भी इसे मेंशन किया हुआ रहता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक, अच्छा मुझे कंपनी से डील करना है, मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या मुझे कंपनी को उधार बेचना है, मुझे कंपनी के साथ कुछ भी डीलिंग करना है, तो दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप वो इजीली आप उसे मांग के देख सकते हैं, या वो आपको इजीली वो अवेलेबल हो सकता है। इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और एनीबडी कैन हैव एक्सेस टू दिस डॉक्यूमेंट। आप उससे रिलेटेड आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्लॉज जिस चीज का ये बिजनेस किया है वही चीज का ये बिजनेस कर रहा है कि नहीं, या मैं बिजनेस से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उसी चीज में कर रहा हूँ कि नहीं जिसमें जो उसका क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया हुआ है। उसे यदि डेविएट किया तो वो तो फिर वाइड एब इश्यू होगा, वो अमान्य हो जाएगा। तो ये सब आपको वहां पे देखना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट इट इज ए डॉक्यूमेंट व्हिच इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ठीक, नेक्स्ट वन इज, एंड टुडेज लास्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बोल रहा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी। कंपनी चलाने के लिए जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होगा, टाइमिंग इतने से इतने, ये जो रिपोर्टिंग टाइम इतना, ठीक, कौन क्या फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स। आपका इंटरनल अफेयर्स बिजनेस सुचारू रूप से चले, बिजनेस अच्छे ढंग से चले, कंपनी अच्छे ढंग से चले, ठीक है, उसके लिए ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका बनाएगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह फंक्शनिंग होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, वो सारा उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको वो मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक, तो ये इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। आपका इंटरनल अफेयर्स जो है, ठीक है, से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक, तो ये मोर और लेस वी हैव कंप्लीटेड ECO 1। ओके सर, हाँ सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर अगर कंपनी को लॉस हो गया है हाँ और लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है, हाँ liabilities are more than the asset, then हाँ, how the company will manage to pay the liabilities? नहीं नहीं, तो लाइबिलिटी ऐसा नहीं है कि लाइबिलिटी यू हैव टू पेड द लाइबिलिटी इमीडिएटली। कंपनी बंद होने वाला है तब प्रॉब्लम होगा। कंपनी बंद हो रहा है क्या? अभी मान लीजिए कि लॉस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस हो गया तो ठीक है। फिर जब कंपनी को लॉस नहीं का मतलब सर बोलिए अगर बोलिए। लॉस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है अगर कंपनी, हाँ तो अच्छा, कंपनी फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स वो लॉस में चल रहा है, ठीक है, यस सर, मतलब पिछले 5 से 10 सालों में लोगों लगातार लॉस 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 हो रहा है उसे, ठीक। एंड द लाइबिलिटी इज यस मोर सर, देन द एसेट, एंड द लाइबिलिटी इज मोर या देन द एसेट, नो। यस सर, हाँ ठीक है, तब जो है यदि लॉस में चल रहा है, उसका फ्यूचर में प्रॉफिट होने का चांस भी नहीं दिख रहा है, तो कंपनी कुछ नहीं करेगा। कंपनी बोलेगा कि कंपनी शुड गो फॉर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मींस बंद होने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप खुद से बंद कर सकते, क्योंकि ओके कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ, आपने उसका एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कंपनी लॉस हो रहा है तो आप अपने से बंद कर सकते हैं। अब यू हैव टू गो टू द कोर्ट। अब कोर्ट जाएंगे, उसको बोलेंगे कि कंपनी को अब लिक्विडेट करना है, तो कोर्ट विल अपॉइंट अ लिक्विडेटर। कोर्ट जो है एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, वो लिक्विडेटर आएगा, वो कंपनी में आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसे एसेट्स और लाइबिलिटीज के उसे लिस्ट दे देंगे कि दीज आर माय एसेट्स एंड दीज आर माय लाइबिलिटीज,
ठीक। अब वो क्या करेगा, सारे एसेट्स बेचेगा, वो एसेट्स बेच के वो लायबिलिटीज पेमेंट करने की कोशिश करेगा, नहीं हो पाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें एक देखे थे, एक क्लॉज, ये हम लोग एक फीचर देखे थे, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड था। यदि सारे शेयर होल्डर्स ने पूरा Yes. पेमेंट कर दिया है, सारे शेयर होल्डर्स ने पूरा का पूरा पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो यदि लायबिलिटी ज्यादा है, जिसका पेमेंट हो पाया, नहीं हो पाया तो कुछ नहीं हो सकता है, गया उसका लॉस हो गया। ठीक। फिर अगला 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 आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले पेमेंट करे तो करे किसका, वो तो प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए कि Yes, बहुत sir. सारे लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, मान लीजिए टोटल लाइबिलिटीज है मेरा 10 लाख रुपीज, और सारा एसेट्स बेच के मेरे पास सिर्फ आया 5 लाख रुपीज, ठीक है, सारा लाइबिलिटी का अमाउंट है 10 लाख रुपीज, और टोटल एसेट्स आपने जो लिक्विडेटर ने जो बेचा उसके उससे आया 5 लाख रुपीज। इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द लाइबिलिटी, ये तो पॉसिबल नहीं कि पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर दूं। इसके लिए ये जो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में कोर्ट के द्वारा वो एक लिस्टिंग किया गया है, लिस्टिंग किया गया है मीन्स सबसे पहले इसको पेमेंट करना, उसके बाद इसको देना, उसके बाद इसको देना, उसके बाद इसको देना, उसके बाद इसको देना, वो पूरा लिस्टिंग किया गया है, ठीक है। तो जिसको मिल पाया, नहीं मिल पाया कुछ नहीं हो सकता है, गया उसका लॉस हो गया, ठीक है। आप इसके जो ऑनर है उससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑनर यदि अपना पूरा लायबिलिटी, पूरा मीन्स जो शेयर उन्होंने खरीदा था उसका पूरा पेमेंट कर दिया है तो उसका लायबिलिटी लिमिटेड है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। कंपनी ही जो पेमेंट कर पाया, नहीं कर पाया, वो जो लायबिलिटी जो था जिसका था उसको लॉस हो गया, ठीक है। Okay, sir. हेलो, आया समझ में कुछ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो इसका वही मैं बोला कि कोर्ट के द्वारा लिस्टिंग भी किया गया, प्रेफरेंस दिया है, पहला इसको देना, दूसरा इसको, तीसरा इसको, ऐसे करके लिस्टिंग किया गया। तो जिसको मिल पाया, नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो फ्रॉम टुमारो हम लोग का पीसीओ है, तो कल मैं कोशिश करूंगा जितना उसका बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे नए नए वर्ड मिलेंगे जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उनको प्रॉब्लम होगा, तो कल मैं कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम हो 2 आवर्स में हम लोग जितना वर्ड्स है वो पहले हम लोग कवर अप कर लें, उसके बाद फिर हम लोग उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। Okay, sir. हाँ ठीक है, फिर कल हम लोग 10 बजे फिर हम लोग आते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। Okay, sir. Thank you, हाँ sir. ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, ओके सर, टुमारो एट 10 AM सर फिर, ओके सर।